Hello everyone, welcome to the first lecture of chemical reactions and equations. So as the name of the chapter suggests, in this chapter we have to study about chemical reactions and how to represent any chemical reaction in theoretical form. In this chapter we will also learn about some reactions which occur in our daily life and we observe frequently in our surroundings. But before getting into those topics, let's see an overview of what we are going to study in this lecture. Okay, our first topic will be chemical reaction. Our first topic will be chemical reaction. Under this topic, we are going to understand what is chemical reaction, and we will also see some examples. And after that, we are going to spend some time on changes in nature. Basically, we will talk about in a very short time, we will talk about changes in nature, which is physical and chemical. Okay, so our second topic will be changes in nature, and our third topic will be characteristics of chemical reaction. Under this topic, we will see that what are the characteristics of any chemical reaction, and after what we observe, then we can say that is it a chemical reaction or not. So let us start the topic with question, what is chemical reaction? And to answer this question, basically I'm not asking for the definition. I want to understand what is chemical reaction, and to answer this question, let's study an experiment. And obviously we are not going to perform the experiment here, but I assume that the students who are having the lab facility in their school or the institutions will get the opportunity to perform this experiment, and the name of the experiment is burning of magnesium ribbon. So now I'm going to explain this experiment, that what's happening here, and after that we will understand what is chemical reaction. Okay, so now suppose one day you went into the lab and the lab instructor gave you some equipments, okay, spirit lamp, and he will give you watch glass, he will give you watch glass, and he will also give you sandpaper, and obviously the magnesium ribbon, which is most important here. And without magnesium you are not going to conduct the experiment, possible ही नहीं है, कैसे करोगे, है ना? So now once you are provided with these equipments, the lab instructor tells you now start the experiment. So what are you going to do? You took the magnesium ribbon, which is in the solid form, and you start burning it with the help of spirit lamp. So here comes the role of spirit lamp. What is the use? It's it is used to initiate the process. Basically ये burn कराता है, initiate करता है process को, ठीक है, spirit lamp. And when you start the burning, oxygen तो आसपास के माहौल में present है ही, oxygen is present in the atmosphere. Okay, so oxygen comes from air and they follow some process. This arrow represent a process which they are following, these two elements, and the magnesium starts burning with a dazzling white flame. Dazzling white flame, magnesium start करता है burn करना with a dazzling white flame. White flame, dazzling मतलब चमकदार सफेद लौ के साथ ये जलता है, and on the watch glass you obtain white powder of the magnesium oxide. White powder on the watch glass. So here comes the role of the watch glass. Watch glass क्या है? Basically it's a plate on which you are going to obtain the white powder of magnesium oxide. Okay, यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ रहा है? मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ इंटरेक्ट कर रहा है एंड एक नया कंपाउंड बना रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट पाउडर के फॉर्म में है, और ये कहाँ ऑब्टेन होगा? वॉच ग्लास के में, ठीक है। नाउ समझते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। There is an element or a substance, there is another substance, they interact with each other and follow some process. Okay, ये एरो प्रोसेस को शो कर रहा है,
एंड दे फॉर्म ए न्यू सब्सटेंस। कोई प्रोसेस फॉलो किया और एक नया सब्सटेंस बना दिया। इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, लाइक कैसे हुआ ये, ठीक है। सो वी विल सी अबाउट दैट लेटर, बट आपको अभी यहाँ ध्यान रखना है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से इंटरेक्ट कर रहा है, कोई प्रोसेस को फॉलो किया एंड एक नया सब्सटेंस बनाया। इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी जो है, ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इस सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, ये जो सब्सटेंस इंटरैक्ट कर रहे थे, जो रिएक्शन को शुरू किए हैं, उनसे डिस्टिंक्ट होगी, डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नाउ लेट्स सी द definition of chemical reaction, and after that again we will come back to that reaction, the experiment. So what is chemical reaction? So a chemical reaction or chemical reactions can be defined as the processes in which new substances with distinct properties are formed. Okay, अभी एक्सपेरिमेंट आपको बताया था, चलो मैच करो। Chemical reactions can be defined as the processes in which new substances with distinct properties are formed. क्लियर है, समझ में आया सबको? Now एक बात आपने नोटिस किया होगा कि इस एक्सपेरिमेंट में स्पिरिट लैम्प का भी यूज हो गया, वॉच ग्लास का भी यूज हो गया। ये सैंड पेपर का यूज क्या है सर, ये तो बताया ही नहीं मैंने आपको। सो क्वेश्चन यहां से आता है एग्जाम में, दैट व्हाट इज द यूज ऑफ सैंड पेपर, और या फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि मैग्नीशियम रिबन को एक्सपेरिमेंट करने से पहले रब क्यों करते हैं सैंड पेपर से। सो सैंड पेपर का यूज क्या है, घिसना। मैग्नीशियम रिबन को घिसा जाता है सैंड पेपर से, किस लिए, वाई इट इज रब। ओके, सो मैग्नीशियम रिबन इज क्लीन्ड, बेसिकली क्लीन करने के लिए, क्लीन एंड टू remove the magnesium oxide layer formed on the surface of magnesium ribbon। सो सैंड पेपर से इसे घिसा जाता है, ठीक है, समझ में आ गया सैंड पेपर का भी यूज। सो मैग्नीशियम रिबन को घिसा जाता है सैंड पेपर से टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड। क्या होता है कि मैग्नीशियम रिबन जब ओपन एटमॉस्फेयर में से रखा जाता है, सो ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपने सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बना लेता है। और फिर क्या है, जब एक बार मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर बन गया, तो जो ये इनिशिएशन प्रोसेस है ना, ये जो मैंने आपको बताया था स्पिरिट लैम्प, ये जो इनिशिएशन प्रोसेस में दिक्कत आती है। सो एक्सपेरिमेंट में कोई दिक्कत ना आए, इसीलिए पहले उसको एक्सपेरिमेंट से पहले ही मैग्नीशियम रिबन को घिसा जाता है, ठीक है। तो आपको आंसर मिल गया। नाउ आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नाउ फोकस करते हैं ये जो टर्म यूज किया गया है द प्रोसेसेस पे। तो क्या ये क्या है, ये भी एक तरह का प्रोसेस है, लेकिन क्या सारे प्रोसेसेस को कहा जा सकता है क्या कि वो केमिकल रिएक्शंस है? क्या सभी प्रोसेसेस को ये कहा जा सकता है कि वो केमिकल रिएक्शंस है? एक नया क्वेश्चन आ गया दिमाग में, ठीक है। नाउ अब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करते हैं, ठीक है। So what kind of processes can be called as chemical reaction? ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखो मेल्टिंग, अदर एग्जांपल देखो बॉइलिंग, या फिर आप वो भी सोच सकते हो कंडेंसेशन, फ्रीजिंग, या फिर जितने भी होते हैं, या फिर ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, ठीक है। ये क्या, मेल्टिंग ऑफ आइस, बॉइलिंग ऑफ वाटर को बॉईल करना, ठीक है। बहुत ही डेली यूज में काम आता है ये सारी चीजें। तो फ्रीज में डाल दिया पानी, 0 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ आइस बन जाता है, ठीक है। सो क्या ये प्रोसेसेस रिएक्शन कहलाएंगे क्या? नहीं कहलाएंगे। आंसर है नहीं कहलाएंगे। क्यों नहीं कहलाएंगे वो देखो। इन केस ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस तो फॉर्म हो गया, लेकिन आइस को जैसे ही हमने हीट किया, जैसे ही टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बढ़ाया, ठीक है, ये जो डेल्टा साइन मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, ये 0 डिग्री सेल्सियस से इसको जैसे ही बढ़ाया, टेम्परेचर को राइज कराया, क्या हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने हीट सोर्स को हटा दिया, अभी जिस सोर्स से हम इसे हीट कर रहे थे, इस सोर्स को मैंने हटा दिया, फिर से टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो जाएगा और वाटर जो है कन्वर्ट हो जाएगा आइस में।
केमिकल फॉर्मूला ऑफ आइस क्या होता है? H2O। वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। सो क्या कोई नया सब्सटेंस बना क्या? डेफिनेशन में क्या लिखा है? केमिकल रिएक्शन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। क्या कोई नया सब्सटेंस बना? नहीं, नहीं बना। सो बेसिकली जो मैंने यहाँ पे इतने सारे जो एग्जांपल्स बताए हैं, ये क्या है? इनमें नए सब्सटेंस नहीं बन रहे हैं। और ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं? फिजिकल चेंजेस के हैं। आपने पहले वाले क्लासेस में पढ़ा होगा, फिजिकल चेंजेस के हैं। ठीक है। सो फिजिकल चेंजेस वाले केस में जितने भी एग्जांपल्स हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उसमें नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। सो नया सब्सटेंस किसमें बन रहा है? सो अब फिजिकल चेंजेस के अलावा और क्या चेंज होता था? केमिकल चेंज होता था ना, पहले भी पढ़ा होगा। केमिकल चेंजेस, कुछ इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल्स कैसे हो गए? जैसे कि फर्मेंटेशन प्रोसेस। फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन प्रोसेस में क्या होता है? वो फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स को सड़ाया जाता है, फर्मेंटेशन किया जाता है और उसे लिकर बनता है। अलग एग्जांपल देख लो, फोटोसिंथेसिस। इसी प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अब्जॉर्ब करते हैं। कहां से? एटमॉस्फेयर से। एंड वाटर को कहां से अब्जॉर्ब करते हैं? जमीन से। एंड दे फॉलो सम प्रोसेस, they follow some process in presence of light and chlorophyll chlorophyll and form C6H12O6 plus O2, ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। ये क्या है? एक्वस फॉर्म में होगा। ये मैं आगे समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी हम यहाँ ध्यान दे रहे हैं कि इस रिएक्शन में क्या हो रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्ट कर रहा है H2O वाटर से एंड फॉर्म कर रहा है C6H12O6 जो कि एक न्यू सब्सटेंस है। ठीक है। इसमें एक नया सब्सटेंस बन रहा है और इसकी प्रॉपर्टीज भी इनसे अलग है। तो क्या ये केमिकल रिएक्शन है? हाँ। अगर अलग एग्जांपल देखते हैं, रेस्पिरेशन। ये अगेन एक एग्जांपल है रेस्पिरेशन। इसका भी रिएक्शन हम लोग बाद में देखेंगे, बट फॉर द टाइम बिंग बस अभी इस पे ध्यान रखो कि किन किन प्रोसेसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। सो वैसे प्रोसेसेस को ही केमिकल रिएक्शन बोलेंगे जो कि नए सब्सटेंस जिनमें बनते हो। ठीक है। सो जो केमिकल चेंजेस हैं, क्या इनको केमिकल रिएक्शंस कहा जा सकता है? हाँ, कहा जा सकता है। इट कैन बी सेड दैट। सो नाउ आई होप आपको ये बात समझ में आई है। अब देखो, एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि अब तक हमने क्या पढ़ा। ठीक है। सबसे पहले हमने एक मैग्नीशियम रिवन वाली स्टडी की है। उसी के आधार पे हमने केमिकल रिएक्शन को समझा है। ठीक है। केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इट कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंस का बनना बहुत जरूरी है विद डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये बनती हैं। उसके बाद हमने समझा कि कौन कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं जिसे हम केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है। सो वैसे प्रोसेसेस जिसमें नया सब्सटेंस बन रहा है, और नॉर्मली जो वैसे प्रोसेसेस जिसमें फिजिकल चेंजेस हो रही हैं वो केमिकल रिएक्शन नहीं कहलाएंगी। लेकिन केमिकल चेंजेस वाले केस में जो जो सब्सटेंस केमिकल चेंजेस शो कर रही हैं ये केमिकल रिएक्शन कहलाएंगी। कुछ और एग्जांपल ले लो। ये एग्जांपल्स आप एज एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन भी ट्रीट कर सकते हो। और एग्जांपल ले लो, राइपनिंग ऑफ फ्रूट। राइपनिंग ऑफ फ्रूट क्लियर है। और क्या ले सकते हैं? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम कर्ड, ये भी एक एग्जांपल है। एक बार एक दही जब बन गया, दही जो है दूध से जब बन गया तो उसे वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, ये इरिवर्सिबल है। सो एग्जांपल है केमिकल चेंज का, एंड एज वेल एज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि नया सब्सटेंस बन रहा है। नाउ एक क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है एग्जाम में, ये फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। और वो क्वेश्चन क्या है? मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड अदर केस क्या हो गया अपना? बर्निंग ऑफ वैक्स। सो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मेल्टिंग ऑफ वैक्स एंड बर्निंग ऑफ वैक्स, इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज है, कौन सा केमिकल चेंज है? सो मेल्टिंग क्या होता है और बर्निंग क्या होता है? उससे पहले बर्निंग को समझते हैं कि बर्निंग है क्या चीज। ठीक है। सो बर्निंग क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन
हम रिएक्ट करवाते हैं विथ अ प्रॉपर इनिशिएशन। जैसे कि ऊपर वाले केस में, ये मैग्नीशियम वाले एग्जांपल में हमने स्पिरिट लैम्प का यूज किया था प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए। उसी तरह बर्निंग के केस में किसी भी सब्सटेंस को ऑक्सीजन से इंटरैक्ट रिएक्ट करवाते हैं विथ प्रॉपर इनिशिएशन, और ये प्रोसेस बर्निंग कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। नाउ मेल्टिंग में क्या होता है कि जो वैक्स है जो कि पहले सॉलिड फॉर्म में था, वो जैसे ही उसको जलाया, कैंडल को जलाया, जैसे कैंडल जलाएंगे तो वैक्स पहले सॉलिड के फॉर्म में था लेकिन बाद में लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन जो है ये मेल्टिंग कहलाता है। लेकिन बर्निंग के केस में क्या होता है, वैक्स एक कार्बन कंपाउंड है। वैक्स क्या है, एक कार्बन कंपाउंड है। और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 4 में अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। बट फॉर द टाइम बीइंग जस्ट रिमेंबर, जब भी हम किसी कार्बन कंपाउंड को रिएक्ट करवाते हैं ऑक्सीजन से, बर्निंग क्या है वे भी बताया आपको, ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाते हैं, क्या होता है, कंपाउंड फॉर्म होता है क्या, CO2 एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लेकिन देखो इस केस में क्या है, एक नया सब्सटेंस बना। अब एक बार नया सब्सटेंस बन गया तो क्या ये रिवर्सिबल है, नहीं है। इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज है, ये केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन है। सो बर्निंग ऑफ वैक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया सबको, सब अभी तक जितनी भी बातें मैंने बताई है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। ओके, so students, our next topic is characteristics of chemical reaction। कहने का क्या मतलब है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑब्जर्व की जाती है। सो दीज आर द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर बेसिकली ऑब्जर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। सो अगर आप किसी प्रोसेस के दौरान ये सारी बातें ऑब्जर्व करते हैं तो कहा जा सकता है कि वो प्रोसेस एक केमिकल रिएक्शन है। सो व्हाट आर दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, change in temperature, change in color, and change in state। Okay, so now let us study these characteristics one by one and we will see some examples also। Okay, so the first characteristics is evolution of gas। evolution of gas during any chemical reaction। सो इसे समझने के लिए अगेन फिर से एक एक्सपेरिमेंट को देखो, गए आप लैब में दोबारा, एंड इस बार जो है आपको वो जो लैब इंस्ट्रक्टर है उन्होंने आपको एक कॉनिकल फ्लास्क दिया। कॉनिकल फ्लास्क कुछ ऐसा दिखता है। ओके, कॉनिकल फ्लास्क दिया एंड along with that he gave you some mineral acid, let's say H2SO4 in this case। ओके, सल्फ्यूरिक एसिड दिया आपने, सल्फ्यूरिक एसिड को इसमें पॉर कर दिया, डाल दिया इसमें। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इधर आ गया है। along with this he gave you जिंक ग्रेन्यूल्स। ओके, जिंक ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिंक कंकड़ जैसे, सड़क पे मिले हुए मिलते हैं ना, और कोने में पत्थर छोटे छोटे, उसी शेप के जिंक के पार्टिकल्स को जिंक ग्रेन्यूल्स कहेंगे। ठीक है, इसको जब आप इसमें डालोगे तो क्या होगा, ठीक है, क्या होगा, जिंक व्हेन रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, then what happens, zinc sulfate ZnSO4 and H2 गैस इज इवॉल्व। ठीक है, यहां से H2 गैस रिलीज होता है। जो ये मैंने सिंबल यूज किया है अपवर्ड्स एरो का, ये इस बात को दर्शाता है कि हाइड्रोजन गैस जो है फॉर्म हो रहा है एंड ये यहां से इवॉल्व हो रहा है। ठीक है, अनदर एग्जांपल, लेट्स से H2SO4 की जगह आपने HCl ले लिया, सेम केस, Zn प्लस HCl, जब ये रिएक्शन होगा तो क्या होगा, ZnCl2 फॉर्म होगा, along with this H2 gas will be released। okay, but in case of H2SO4 the reaction will be more vigorous and in case of HCl the reaction will be a little bit slower। रिएक्शन दोनों में होगा लेकिन इसमें विगरस होगा, एकदम तुरंत, एकदम टेम्परेचर हाई हो जाएगा और जल्दी जल्दी ये तुरंत हाइड्रोजन गैस बनना शुरू हो जाएगा। बट इन केस ऑफ HCl ये थोड़ा स्लो होगा। अब ये क्यों होगा, ये आप पढ़ेंगे एसिड की प्रॉपर्टीज में, अगले चैप्टर में, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में। ठीक है, बट फॉर द टाइम बीइंग इतना बस ध्यान रखिए कि Zn जो है H2SO4 से रिएक्ट करता है बहुत ही विगरसली, तुरंत रिएक्शन हो, ठीक है, फास्ट रिएक्शन हो। और इस केस में क्या होगा, स्लो होगा। इस केस में क्या होगा, फास्ट रिएक्शन होगा, और इस केस में क्या होगा, थोड़ा स्लो होगा, कंपैरेटिवली स्लो होगा।
ठीक है, सो आई होप आपको ये क्लियर है ना। सेकेंड अपना जो कैरेक्टरिस्टिक्स था वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ये प्रेसिपिटेट है, इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे दिखा जाता है पीपीटी। ओके, सो इस प्रोसेस को समझने से पहले जो है पहले समझते हैं ये प्रेसिपिटेट क्या होता है। मान लिया आपने कोई केमिकल रिएक्शन किया है या फिर आप लैब में कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट केमिकल रिएक्शन after the completion of process you obtain some powdered solid in the powder form at the bottom of the equipment. Let's say this is the beaker, इस बार आप beaker में experiment कर रहे हो, so you obtain some powdery form of the product at the bottom of the equipment in which you are performing the experiment, and in this case these powdery form is insoluble in the solution, reaction solution, ये insoluble है, ठीक है, ये insoluble है, then such type of product is called precipitate. So precipitate क्या होता है? It's an insoluble product. So insoluble product formed during a chemical reaction and obtained at the bottom of the equipment. Okay, so precipitate क्या होता है? इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है फॉर्म ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन, और ये कहाँ मिलता है? रिएक्शन के जो अपना रिएक्शन इक्विपमेंट था उसके बॉटम में मिलेगा। क्लियर है? सो नाउ लेट्स सी सम एग्जांपल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। सो इस टाइम आपने बीकर में BaCl2 बेरियम क्लोराइड को रिएक्ट करवाया H2SO4 से, सल्फ्यूरिक एसिड से। ओके, सो क्या होगा? बेरियम सल्फेट बनेगा। अब देखो ये कौन सा सब्सटेंस कैसे बन रहा है इस बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं, सो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, बेरियम सल्फेट एंड अलोंग विद दिस HCl विल बी फॉर्म्ड। अब ये बेरियम सल्फेट क्या है? ये एक प्रेसिपिटेट है। ये सिंबल जो मैंने डाउनवर्ड्स एरो शो किया है ये प्रेसिपिटेट को दर्शाता है। डाउनवर्ड्स एरो मतलब द प्रेसिपिटेट फॉर्म्स एंड सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द इक्विपमेंट, और इसका कलर क्या होता है? व्हाइट। White precipitate of barium sulfate is formed during this reaction. Clear है? Let's see one more example. One more example देखते हैं। जब potassium iodide Ki, potassium iodide when reacts with lead nitrate PbNO3 का whole twice. This is the formula for lead nitrate. So when potassium iodide when reacts with lead nitrate, then क्या form होता है? lead iodide. ठीक है, ये भी एक प्रेसिपिटेट है एंड इस प्रेसिपिटेट का कलर है येलो, इसका नाम है लेड आयोडाइड अलोंग विद पोटेशियम नाइट्रेट। समझ रहे हो? इस केस में क्या है? PbI2 का फॉर्मेशन हो रहा है। सो इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बेरियम सल्फेट जो कि व्हाइट कलर का होता है, लेड आयोडाइड जो कि येलो कलर का होता है। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? आपको ये कलर याद रखने हैं, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कौन सा प्रेसिपिटेट का कलर क्या है। सो आपको 2-4 प्रेसिपिटेट याद करना है, आप याद कर लोगे। जैसे बेरियम सल्फेट व्हाइट हो गया तो अभी याद हो जाएगा, लेड आयोडाइड क्या येलो हो गया, ये भी याद कर लेना है। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो द थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज चेंज इन कलर। चेंज इन कलर कहने क्या मतलब है कि जब ये रिएक्शन हो रहा होगा तो आप सिस्टम में जिसको कि आप ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें कलर का चेंज आप ऑब्जर्व करेंगे। सो लेट्स सी एग्जांपल। ऑब्वियसली एग्जांपल से ही समझ में आएगा। पर जैसे कि कॉपर सल्फेट, बीकर में आपने कॉपर सल्फेट लिया, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। एंड इन दैट इक्विपमेंट आपने क्या कर दिया? आपने आयरन डाल दिया। ठीक है, आयरन का कोई पार्टिकल या फिर आयरन नेल डाल दिया। लेट्स से आयरन नेल डाल दिया। आयरन का कलर क्या होता है? आयरन का कलर होता है ग्रे। सो आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें आयरन डाल दिया। अब क्या होगा? जैसे ही आपने डाला कुछ देर के बाद ऑब्जर्व करोगे सॉल्यूशन का कलर जो है ग्रीन हो गया है। पहले ब्लू था, बाद में ग्रीन हो गया। एंड इस आयरन के पार्टिकल पे कुछ पोर्शन तो डिसॉल्व हो जाएगा सॉल्यूशन में एंड आयरन सल्फेट बनाएगा, लेकिन जो बचा हुआ होगा इसके सरफेस पे कॉपर ऑब्टेन होगा एंड इसका कलर होता है रेडिश ब्राउन। ठीक है,
ज्यादा रेड होगा इन कंपेरिजन टू ब्राउन, तो रेडिश ब्राउन कलर का कॉपर जो है इस पे चिपक जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, सॉल्यूशन का कलर ब्लू से ग्रीन चेंज हो रहा है। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताया है। आपको याद क्या रखना है, ब्लू से ग्रीन चेंज हो रहा है, तो चेंज इन कलर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल जो है उसमें रिएक्शन जानने की जरूरत नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन देने की, आपको समझ में आनी चाहिए बातें, और ये आपको काम ही आएंगी बाद में। सो व्हेन एसिडिफाइड पोटेशियम क्रोमेट Cr2O7, ये है पोटेशियम क्रोमेट। ठीक है, एसिडिफाइड कहने का क्या मतलब है, इसमें एसिड मिक्स्ड है। ठीक है, ये सॉल्यूशन जो है जिसमें एसिड भी प्रेजेंट है। सो एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट व्हेन रिएक्ट्स विद समहाउ, आपने इसको किसी तरह से सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवा दिया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड गैसियस फॉर्म में होता है, आपने रिएक्ट करवाया, और जो ये एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट है इसमें इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। जैसे ही आप सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्ट करवाएंगे तो क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होगा क्रोमियम सल्फेट SO4 ओके। सो क्या फॉर्म होता है, Cr2SO3, एंड सॉल्यूशन का जो कलर है वो ऑरेंज से डार्क ग्रीन हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑरेंज से डार्क ग्रीन हो जाता है। सो आपके काम की बात ये है, when acidified potassium dichromate reacts with sulfur dioxide, then the solution of color changes from orange to dark green. अब जो लोग थोड़े जिज्ञासु हैं, जो कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उनके लिए ये पार्ट जो अभी मैं बता रहा हूँ। इस केस में क्या होता है, इन केस ऑफ क्रोमियम पोटेशियम डाइक्रोमेट, जो क्रोमियम है वो +6 स्टेट में होता है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर रहा हूँ, ये आप ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में आप हायर क्लासेस में 11th में मोस्ट प्रोबेबली पढ़ोगे। ठीक है, ये बस फिलहाल इतना दे रखो कि क्रोमियम जो है +6 स्टेट में है, एंड इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, सल्फर जो है SO2 जो है इसमें से, अब ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में आप इसी चैप्टर में आगे पढ़ोगे। ठीक है, सल्फर पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या है, बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन दे सकता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, इसमें से ये ऑक्सीजन ले लेता है एंड सल्फेट आयन बनाता है, एंड देन सल्फेट आयन बनाता है, और क्रोमियम में क्या चेंज होता है कि ये Cr+6 स्टेट से क्रोमियम +3 स्टेट में आ जाता है, और फिर जो है ये दोनों आपस में मिल करके ये कंपाउंड बनाते हैं, जिसमें कि क्रोमियम क्या है, +3 स्टेट में है, एंड SO4 जो है ये -2 स्टेट में है। ठीक है, सल्फेट आयन। और कैसे कंपाउंड बनता है ये तो आपको पता ही होगा, या फिर आप सीखेंगे, या 9th में भी थोड़ा बहुत सीखा ही होगा आपने। क्लियर है। सो जो ये क्रोमियम का +6 से +3 में ट्रांजिशन हुआ है, इसीलिए कलर जो है ऑरेंज से डार्क ग्रीन शिफ्ट हो गया है। समझ में आया? अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपको इतना इतना ध्यान रखना है कि कलर जो है इस केस में ऑरेंज से डार्क ग्रीन शिफ्ट हो रहा है। सो आई होप ये क्लियर है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। So the fourth characteristics of chemical reactions is change in temperature. So जब कोई chemical reaction होता है तो उसमें temperature का change होता है। For example के लिए let's say जो मैंने आपको शुरू में बताया था, magnesium when reacts with oxygen, white powder of magnesium oxide MgO with dazzling white flame and heat, ये क्या है, white powder होगा। ये शुरू में मैंने आपको बताया था, व्हाइट पाउडर along with evolution of heat। समझ रहे हो? तो इस केस में क्या है, जैसे ही हीट आएगा तो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो क्या करेगा, राइज कर जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या चेंज इन टेम्परेचर को दर्शाता है। अगला एग्जांपल ले लो, घर में आप चूना इस्तेमाल करते होगे ना, जैसे व्हाइट वॉशिंग के दौरान पे चूना लाते हैं, चूना हिंदी में से चूना बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम। व्हेन मिक्स्ड विथ वाटर, जब जैसे ही हमने बकेट में चूना डाल के पानी डालते हैं, उसमें क्या होता है, एक नया सब्सटेंस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसे बोलते हैं स्लैक्ट लाइम। एंड इसके साथ ही साथ क्या होता है, हीट भी रिलीज होता है, जो कि इस पूरे सॉल्यूशन को, ये सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा, इट इज इन एक्वस फॉर्म। ठीक है,
ये एक्वस फॉर्म में ऑब्टेन होगा, यानी कि इसका सॉल्यूशन मिलेगा हमें डिजॉल्व इन द वाटर, और ये हीट को रिलीज करता है जिससे कि सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ जाता है। क्लियर है? तो ये दोनों एग्जांपल है जिसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अलग केस क्या हो सकता है, किसी रिएक्शन में टेम्परेचर कम भी तो हो सकता है ना, कम भी हो सकता है, तो वो भी एग्जांपल देख लो। बेरियम हाइड्रोक्साइड when reacts with ammonium chloride NH4Cl, this is ammonium chloride, रिएक्ट करता है, then BaCl2 बेरियम क्लोराइड बनता है along with NH3 अमोनिया एंड वाटर। अब इस केस में क्या होता है कि जो ये सिस्टम का टेम्परेचर है, ये रिएक्शन पर्पस के लिए ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब किया तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाता है, और ये इतना कम हो जाता है कि जो ये वाटर है ना, ये आइस में कन्वर्ट हो जाता है, और ये जो कंप्लीट सॉल्यूशन जो था ये सॉलिड फॉर्म में ऑब्टेन होता है। तो ये आपके काम की नहीं है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, लेकिन आपको काम के क्या है यहाँ पे समझने की जरूरत क्या है, टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। देखो यहाँ पे टेम्परेचर फॉल हो रहा है, यहाँ पे राइज कर रहा है, यहाँ पे भी राइज कर रहा है। क्लियर है? नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज द फिफ्थ वन, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इज चेंज इन स्टेट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन। चेंज इन स्टेट, सो इसे समझने के लिए कौन सा एग्जांपल ले, वही बर्निंग ऑफ कैंडल विक्स। बर्निंग ऑफ कैंडल वैक्स का एग्जांपल लिया था। कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, बर्निंग ऑफ वैक्स, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म होता है। सो इसी को रिएक्शन के फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। वैक्स क्या है, कार्बन कंपाउंड है, ठीक है, कार्बन का कोई कंपाउंड है, इस बारे में हम लोग लेटर पढ़ेंगे बाद में, उस जो कि सॉलिड फॉर्म में है इनिशियली। जैसे ही ये रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन से, इसने कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना दिया, ठीक है, एंड H2O लिक्विड बना दिया। समझ रहे हो, लिक्विड प्रोड्यूस होगा एंड अलोंग विथ हीट। क्लियर है? तो इसमें भी हीट आएगा, लेकिन यहां समझने वाली बात क्या है कि पहले कार्बन क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, अब क्या हो गया, ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सो स्टेट में चेंज आया कि नहीं आया, ऑब्वियसली आया। वो दूसरा एग्जांपल ले लो, जिंक वाला। जिंक जो है जब H2SO4 से रिएक्ट करता है, व्हेन रिएक्ट विद H2SO4 और HCl, देन जिंक सल्फेट ZnSO4 एक्वस डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन। पहले क्या था, ये सॉलिड फॉर्म में था, अब क्या हो गया, एक्वस अलोंग विद द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो इट्स अगेन एग्जांपल ऑफ चेंज ऑफ स्टेट। पहले ये क्या है, अब ये लिक्विड फॉर्म में है, ये पहले क्या था, सॉलिड फॉर्म में था, तो स्टेट में चेंज आया कि नहीं आया। स्टेट को समझते हुए या नहीं, स्टेट बेसिकली क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, ठीक है। सो इस केस में देखो, सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू गैस, इस केस में सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड ड्यूरिंग एनी केमिकल रिएक्शन। सो इट्स एन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन, एंड आई होप इट इज clear to each one of you, and if not, then you can watch the video again, or you can post your comment in the comment section. You can also join our Telegram channel, and the link will be in the description. And in the Telegram channel you can also post your doubts, and we will be ready to clear your doubts. So that's all for this video. Thank you. Good luck.